Hello dear students, welcome back in our today's mathematics class. Student, we have completed our chapter number 3, right? And I hope you all understood the topic very nicely because the response, the test which I took, the student has given very nice response. Okay, so keep doing good work student as your half-yearly exams are coming soon. Right, so today we are going to start new chapter, chapter 4, that is practical geometry. Okay student, and today we'll do two exercises 4.1 and 4.2. Fine, and please understand this topic very nicely because it's very easy. And this topic will understand the copy in nice manner, but here I am explaining you. So understand the step which I am speaking, and the rest of the question become very easy. Okay, and what type of question we'll deal with, I'll do the question on the basis of types only. ठीक है कि 4.1 एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप, और उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज सेम ऑलवेज. Right student, so let's start our exercise. First of all, exercise 4.1 and introduction I'll do in between only because dono simultaneously only work. Okay, so let's start. First of all, exercise 4.1. So in exercise 4.1 we have 4 parts, 4 questions. Okay, so to exercise 4.1 we will deal what type of question. If you have given length of 4 side and one diagonal is given, मतलब हमेशा आपको आएगा to form a quadrilateral, और quadrilateral में 4 side होते हैं, 2 diagonals होते हैं, right student? And if in a question you are having 4 side and one diagonal, ठीक है, तो आप उसको कैसे बनाओगे? With the help of compass only. These because geometry, practical geometry, so it means geometry you will do with the help of compass, pencil. The figure you will make with the help of this only, right student? And scale also is there. Now see, question number 1, construct the following quadrilateral. You have to make a quadrilateral. Okay, and this length is given to you. AB is 4.5, BC, CD, AD and AC. As you can see, 4 side and one diagonal is given. So कभी भी स्टूडेंट अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ओके, पहले आप सबसे पहले एक रफ फिगर बनाओगे जिससे आप अंडरस्टैंड करोगे यस जो आप क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है उसकी जो आइडिया आपको मिल जाएगा हाउ टू मेक. ओके, दिस बिकम वेरी सिंपल फॉर यू. लेट्स सी हियर आई एम मेकिंग वन क्वाड्रिलेटरल. ओके, दिस नेम दिया A B C D. हमेशा एक सीक्वेंस में नेमिंग होती है A B C D या A B C D, योर चॉइस, बट सीक्वेंस में होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ये नहीं कि कहीं पे भी कोई भी पॉइंट्स लो A यहाँ B यहाँ C, नो, इट शुड बी इन अ सीक्वेंस, राइट स्टूडेंट्स? सो A B C D ये हमारे क्वाड्रिलेटरल है. नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन टर्म जस्ट राइट विद द रफ फिगर. AB कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 centimeter, AD 6 centimeter and one diagonal AC is 7 centimeter. The figure you have made, इससे आपको आइडिया होगा स्टूडेंट. it will help you to make the quadrilateral with the help of compass, right? और ध्यान से सुनो स्टूडेंट, 2 types मतलब 2 methods हैं, but I am going to tell you the simplest one method, right? So listen carefully. Listen, because I don't have compass here, I don't have things, so I'm explaining you in such a manner only, but the thing you will explain by you, the same thing you will do it very nicely in your notebook, right? Now see, very first step which we are using in all the quadrilateral, क्या कि जो भी डायगोनल होगा ना स्टूडेंट, वो हम एज अ बेस लेंगे हमेशा. कैसे? आप ए बी को भी एज अ बेस ले सकते हो. बेस मतलब जहां से हमें एंगल बनाने स्टार्ट करने हैं. ओके, बट इफ यू विल टेक डायगोनल एज अ बेस लाइन तो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू मेक द क्वाड्रिलेटरल, वेरी इजी. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द डायगोनल एज अ बेस लाइन. अब क्या है स्टूडेंट? सी, सबसे पहला स्टेप, the same step I am writing over here, steps भी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, और I am drawing over here also. This will help you to understand. But the steps I will write for first question only. For the rest of the question you will write down the steps by your own. Okay student? Because आपको पता है steps are very simple. जो कर रहे हो वही लिखते हैं, right?
सो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आई एम राइटिंग डाउन, बट बाकी क्वेश्चंस के लिए यू विल राइट डाउन स्टेप. नाउ सी क्या किया सबसे पहला स्टेप. ए सी कितना है स्टूडेंट. ए सी इज 7 centimeter. I know it's not accurate because I'm not measuring with the help of scale, but आप scale, ruler and compass everything you will use. ठीक है, पहले आपने क्या लिया. So write down here, take AC is equals to 7 centimeter as a baseline. कुछ भी लिख सकते हो, ये तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, डायगोनल AC. ओके, नाउ अब क्या स्टूडेंट, जब आप देखो ये डायगोनल है, अगर इसको आपने बेस लाइन बना दिया, ऐसे कर दिया, तो आपने देखा डी पॉइंट ऊपर आएगा, बी पॉइंट नीचे आएगा. वैसे भी ये डी पॉइंट ऊपर है, बी नीचे है, बट सी ये अब बेस लाइन बन गया आपका. बेस लाइन मतलब इट विल बी लाइक दैट. तो बी पॉइंट ऊपर एंड सॉरी डी पॉइंट ऊपर एंड बी पॉइंट नीचे. सो ये रफली ध्यान में रखना, डी पॉइंट ऊपर एंड बी पॉइंट नीचे. अभी बनाया नहीं है, बट हमने मतलब रफली वी हैव मेड. ओके, सो नाउ सी ए से D का डिस्टेंस, A से D का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर. इट मीन्स A से लेके आप एक अपने कंपास को ओपन करोगे आर्क 6 सेंटीमीटर. एंड हाउ यू विल ओपन, ये स्केल है सपोज आपका. ठीक है, यू नो हियर सपोज हियर इज 6. एक नीडल का पॉइंट 6 0 पे रखोगे एंड सेकंड वन कंपास, उसे 6 सेंटीमीटर ओपन करोगे. आई होप दैट यू नो दिस. 6 सेंटीमीटर ओपन एन आर्क and needle, compass के needle को A point पे रख के and then make an arc. ठीक है, so suppose this is compass, needle यहाँ रखी and this make an arc. Fine, ये क्या होगा AD. So write down, अभी D point नहीं है, but A से आपने एक arc लगाई 6 centimeter because length is 6. So write down, open a compass with length 6 centimeter. And from point A make an arc. Right student? Okay. अब क्या किया हमने, अब ये D से C का पॉइंट DC 4 सेंटीमीटर. अब C पे कितना ओपन करोगे आर्क 4 सेंटीमीटर एंड देन यू विल कट दैट आर्क. ऑब्वियस स्टूडेंट है ना. तो जहां पे ये दो आपके पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी पॉइंट डी. राइट स्टूडेंट, दैट विल बी पॉइंट डी. नाउ जॉइन दीज 2 पॉइंट्स. हमने क्या किया, हमने किया कि फ्रॉम पॉइंट सी ओपन एंड कंपास विद लेंथ, कितनी लेंथ स्टूडेंट, विद लेंथ 4 centimeter and cut the previous arc. Right, cut the previous arc and that point is called, where the two arcs intersect, that point is called 4 point. We got point D where both the arcs intersect. You can write down. Got student? Now ये तो हो गया ऊपर का पोर्शन. अब नीचे के लिए B. अब B स्टूडेंट, A से B का डिस्टेंस 4.5. सो 4.5 आर्क खोलो, A पॉइंट पे रख के मेक एन आर्क एंड देन C से B का CB 5.5. सो 5.5 आर्क खोलो एंड कट दैट आर्क. सो दैट पॉइंट इज B पॉइंट. वेरी सिंपल स्टूडेंट. और ये जो पॉइंट है इनको ज्वाइन कर दीजिए. राइट, सो व्हाट यू गॉट, एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया. ABCD, ऐसी मैथ है ABCD एंड वन डायगोनल AC. गॉट स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल. और ये आप यहाँ पॉइंट लिखोगे. आई एम मेकिंग डाउन हियर. फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, सिमिलरली क्या किया था स्टूडेंट, हमने A से फ्रॉम पॉइंट A ओपन ए कंपास विद लेंथ, कितनी लेंथ थी स्टूडेंट, विद लेंथ 4.5 centimeter and make an arc. ठीक है. Now 6 point, from point C
open an arc या open an compass CB 5.5 centimeter. Open a compass 5.5 centimeter. Okay, and from point C, cut the previous arc. Cut the previous arc, and that point we got B, where both the arcs meet. Then join. हमेशा कोई भी पॉइंट होगा उसे आप ज्वाइन जरूर करोगे. वेरी सिंपल. सो एज यू कैन सी स्टूडेंट, दिस इज वेरी सिंपल ओनली. जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसे हमने सिर्फ बनाया है. दैट्स इट. ठीक है. एक्चुअली ऑल्दो आपकी फिगर जो है ऐसी नहीं आएगी व्हेन यू विल मेक विद द हेल्प ऑफ कंपास, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग कंपास. तो जो आपकी होगी वो एक्यूरेट होगी. गॉट स्टूडेंट? I hope that you got all these steps. Okay, now moving towards our question number 1, second part. Now student, second part. Okay, whatever I am speaking, please understand it carefully. एक quadrilateral है आपके पास JUMP jump and these condition are given to you. सबसे पहले क्या बनाओगे? एक रफ फिगर. ठीक है, एक quadrilateral है आपके पास जिसका नेम क्या है? JUMP. Right? So, according to this naming दे दी. अब according to given length, JU 3.5 centimeter, UM 4 centimeter, MP 5 centimeter, PJ 4.5 centimeter, and PU. PU is this one diagonal, that is 6.5 centimeter. Again, same type of question which we had done in first part. Okay. So student, ये रफ फिगर बना ली. अब सबसे पहले टेक अ बेस लाइन ऑफ द डायगोनल. सो डायगोनल की हमने बेस लाइन ले ली. PU कितनी है बेटा? 6.5 सेंटीमीटर. फाइन. अब यहां से PU ऐसे होगा. देखो M पॉइंट आएगा ऊपर एंड J पॉइंट आएगा नीचे. ये रफली पहले अपने माइंड में बना लीजिए. ठीक है, PU बेस लाइन है. अगर ये ऐसे हो गया स्टूडेंट टर्न, तो M ऊपर J नीचे. राइट. नाउ Why? Because आपको लेंथ देखनी इजी हो जाएगी. नाउ देखो P से कौन सी लेंथ बनेगी? ऑब्वियस है PM और UM, है ना. अब PM की लेंथ दी है, यस 5.5. अब कंपास लो विद द हेल्प ऑफ स्केल. ओपन द कंपास 5 सेंटीमीटर, मेक एन आर्क. P से एक आर्क, दूसरी आर्क U से. UM कितना है? 4. ओपन द आर्क 4 सेंटीमीटर. दिस विल बी, सो जहां पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट M होगा. सिंपल. एंड देन जॉइन दी लेंथ, क्योंकि हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. सिंपल. ये कितना था स्टूडेंट? PM इज 5 सेंटीमीटर. और यू कैन राइट ऑल्सो, इससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा. UM 4 सेंटीमीटर नहीं भी लिख रहे, योर चॉइस स्टूडेंट, बट यू हैव टू मेक. अब वाइस वर्सा, सिमिलरली वही पॉइंट T के लिए PT कितना है स्टूडेंट? सो नीचे क्या? J. PJ 4.5. सो ओपन एन आर्क 4.5. U से it will be, yes, JU 3.5. ओके. सो 3.5. अब स्टूडेंट कई बार क्या होता है ना, देखो ये कितना था आपका? 6.5. तो ऐसे आएगा. ठीक है. और वो कितना है? JU 3.5. तो आपका आर्क में भी यहाँ तक ऐसे कट हो. इट्स नॉट गोइंग कम्प्लीटली कट. देन यू विल थिंक देन इट्स नॉट इंटरसेक्टिंग, द हाउ J पॉइंट विल कम. सी बेटा, कभी भी ऐसा होता है, डोंट बी गेट पैनिक. हमेशा उसी लेंथ से, सेम लेंथ से, P और U का 6.5 था, उसी लेंथ का लेके उस आर्क को एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो. तो आप देखना ये पॉइंट मिल गया आपका J पॉइंट. ओके. कभी आपके आर्क जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, डोंट बी वरी. यू टेक अगेन द सेम लेंथ और उस आर्क को थोड़ी इंक्रीज कर दो. डेफिनेटली दे विल मीट, दे विल कट. Okay, so J point we got, so PJ and PU. So quadrilateral JUMP and one diagonal is there. Very simple student. So the steps I spoke that you will write by your own only. जैसे step किया that you can write. I hope you understood. Now coming to third part, more you will get. Now coming to third part student. Very simple.
Question is, one parallelogram is given to you, MORE. Parallelogram also have a four side. Okay, so make a rough figure first. Parallelogram is there. Name क्या है? MORE. Right? अब क्या लेंथ? OR is given to you 6 centimeter. जो कंडीशन है उसको यहाँ पे फिल कर दो पहले, ठीक है? RE, where is RE? RE is 4.5 centimeter. EO, where is EO? E and O, and one diagonal is given to you 7.5 centimeter. अब students, we have only two length and one diagonal. So how you will make? As you know, in parallelogram, opposite sides are equal. No? So अगर ये 4.5 है, so this will also be 4.5. And this is R is 6 centimeter, so M is also 6 centimeter. Now you got the same condition like the question we have done in the previous two questions, right? So very simple. First of all, take a diagonal as a baseline. So I took EO 7.5 centimeter. So now EO ये ऐसे हो जाएगा, R point will be up and M point will be down roughly. Now E से क्या बनेगा? ER है ना? ER is 4.5, open an arc 4.5, then from O से भी R की 6 centimeter, 6 centimeter open करो, cut the arc, ये point क्या होगा आपका? R. Then join ER and OR. Similarly, from down also, EM कितना है? 6 centimeter. So 6 centimeter open an arc, and O से M 4.5, cut that arc, and then ये point क्या होगा आपके पास student? EO, that M point is there. Fine. God student, हमेशा पहले सिंपली लिख लो, ऊपर R बनेगा, नीचे M बनेगा. So E से क्या बनेगा? EM की लेंथ लिखो, उसे कितनी आर्क बनाओ. Very simple. Then after that join that line. You got student? MORE, one quadrilateral with one diagonal. Very simple. So हमेशा don't forget make a rough figure. रफ फिगर बना के आपको एक आइडिया हो जाता है वेरी सिंपली, और उसको देख के आप सिर्फ कंपास यूज करनी है आपको. दैट्स इट. ओके, नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, रोम्बस इज गिवन टू यू BEST. तो पहले एक रोम्बस बनाएंगे रफ फिगर में, ठीक है? रोम्बस वी मेड, रोम्बस नेम क्या है? BEST इन अ सीक्वेंस मैनर, ठीक है? So best we have made. अब देखो कंडीशन क्या है? BE, this length is given to you 4.5 centimeter, and ET, where is ET? This one diagonal. Only one length is given to and one diagonal. What condition? Right. Rhombus में all length are same, all sides are equal. So अगर एक 4.5 है, तो सारी 4.5. और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बिकॉज आपको एक ही बार कंपास खोलना है एंड हर पॉइंट से सेम आर्क लगानी है, ठीक है? सो दिस क्वेश्चन विल बी होमवर्क फॉर यू. आई होप यू विल डू इट बाय योर ओन, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल. आपको हर बार डिफरेंट लेंथ नहीं लेनी. यू हैव ओनली वन लेंथ फ्रॉम एवरी पॉइंट, दैट इज 4.5. सो इट बिकम वेरी इजी. I hope you will do. Okay, if you will not get, so kindly ask me. I'll explain you. So this is all about our question number 1 of 4.1, which is very simple. If 4 length of the side and one diagonal is given. Now moving further, our next exercise. Now student, we are moving further our exercise 4.2. These questions are very simple student, क्योंकि हर condition is being given to you. हर कुछ आपको दिया है, आपको just perform करना है, that's it. Okay, कुछ new नहीं निकालना है आपको. बस ये कि points याद रहने चाहिए, the steps you have to learn कि क्या होगा. Now second method, किस type का quadrilateral आता है? It can be length of 3 side. Means अब आपको एक quadrilateral की 3 side given है out of 4. Fine, and 2 diagonal is given, and एक diagonal की जगह 2 diagonal given है. Steps are same, थोड़े से changes obvious है. एक side नहीं given है तो कुछ तो changes होंगे, and it's very simple only student. See, first of all वही method, पहले rough figure. So one quadrilateral given to you, left LIFT, and this condition is given to you. ठीक है, तो पहले एक आप quadrilateral बना लीजिए. This is quadrilateral. The name is
LIFT. ठीक है. Now condition LI 4 centimeter, IF 3 centimeter, TL is 2.5 centimeter, LF, this one diagonal, is 4.5 centimeter, and IT, this another diagonal, is given to you 4 centimeter. बना लिया स्टूडेंट. 4.5, LF is 4.5. ठीक है. दिस इज अ रफ फिगर. कंडीशन अगेन वही है. सबसे पहले स्टूडेंट, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल है, नाम में गिवन की रेक्टेंगल है, स्क्वायर है ना. क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियस हम ऑपोजिट लेंथ सेम नहीं कर सकते. यू विल थिंक, इफ यू आर थिंकिंग दिस थिंग, सो इट्स नॉट. क्वाड्रिलेटरल सिंपल इज गिवन. फाइन. सो व्हाट इज द स्टेप, व्हाट आर द स्टेप? सबसे पहले वही चीज, आउट ऑफ टू डायगोनल आप कोई भी एक डायगोनल को बेस ले लो. Your choice. Either you can take LF or you can take TI. Method सेम ही रहेगा. कोई भी एक को बेस डायगोनल लेना, सिर्फ डायगोनल को है, because it's very easy method with the diagonal. Okay. So suppose I'm taking LF. LF के साथ I'm taking, साथ में नेमिंग जरूर दो स्टूडेंट. It become very easy for you. LF कितना था आपका? 4.5 सेंटीमीटर. अब देखो ये डायगोनल आपका ऐसे है, ये अगर ऐसे हो गया बिकॉज बेस लाइन नहीं है, तो टी पॉइंट ऊपर एंड आई पॉइंट नीचे. ये आपने रफली बना लिया. ठीक है स्टूडेंट. टी पॉइंट ऊपर एंड आई पॉइंट नीचे. अब देखो एल से क्या लेंथ बनेगी? एल टी. अब एल टी इज गिवन टू यू. यस, एल टी इज 2.5. ओपन एन आर्क 2.5 एंड देन मेक एन आर्क. गेटिंग स्टूडेंट? सिंपली. अब F से क्या बनेगा? FT. बट FT2 तो आपको लेंथ गिवन ही नहीं है. क्या करेंगे? कुछ नहीं, छोड़ दीजिए. गिवन नहीं है, क्या करें? नो. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप. अब नीचे का स्टेप लेंगे सिमिलरली. L से LI. LI इज 4 सेंटीमीटर. सो मेक ओपन एन आर्क कंपास 4 सेंटीमीटर एंड ये लगा ली हमने आर्क. ठीक है. F से FI 3 centimeter. Again open the compass 3 centimeter और cut this arc. ये पॉइंट क्या बना? इंटरसेक्टिंग पॉइंट I. नो स्टूडेंट. सो join it. क्योंकि जो कंप्लीट बन गया उसको तो बना ले हम ना. हमारे पास LIF बन गया. अब T कैसे बनेगा स्टूडेंट? हमारे पास तो LT गिवन था, FT नहीं था. अब जब तक इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं बनता हम नहीं बना सकते उसको T पॉइंट. ठीक है. बट स्टूडेंट यहाँ टी था ना, टी आई तो गिवन है. सी टी आई कितना है? 4 सेंटीमीटर. सो जो उसकी लेंथ गिवन है उसको बनाना है हमें. दैट्स इट. टी आई इज गिवन. इट मींस आई पे, क्योंकि आई बन चुका है, इट्स प्रिपेयर्ड नाउ. सो आई पे आप कितनी कंपास खोलोगे? 4 सेंटीमीटर. एंड 4 सेंटीमीटर ओपन करके इस आर्क को कट करोगे. अब इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. दैट इज टी. कैसे कट हुआ था? इन दोनों को करने के बाद. फाइन. अब ऑब्वियस पॉइंट बन गया. सो यू कैन ज्वाइन विद दिस आल्सो एंड विद दिस आल्सो. क्वाड्रिलेटरल मेड LIFT, one diagonal and second one diagonal. वेरी सिंपल स्टूडेंट. जो कंडीशन है गिवन आप मेरे को, मैंने क्या बोला है? द सेम यू हैव टू यूज इट. दैट्स इट. FT नहीं था, हमने नहीं ड्रॉ किया, हमारे पास TI था. सो I से हमने वो आर्क को कैंसिल आउट किया. इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड T. देन ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स. अगर एक पॉइंट मिल गया देन उसे हम ज्वाइन कर सकते हैं. फाइन स्टूडेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. वेरी सिंपल लाइक प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डन, बट यहाँ 3 side 2 diagonal given. One method is same. Okay. Now coming to our second part. Now student, second part. Again one quadrilateral is given to you, GOLD, and this condition is given to you. So according to condition make a rough figure पहले. Quadrilateral है. Fine. Name GOLD. Okay. So OL is 7.5. जो given है just make it over here, write down over here. GL one diagonal, that is 6 centimeter. Fine. GD is 6 centimeter. LD is 5 centimeter.
and OD is another diagonal that is 10 centimeter. Again one length is not given to you. वैसे ही होगा स्टूडेंट, बेस लाइन लो, कोई भी एक डायगोनल को, सपोज OD को लिया, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, दिस क्वेश्चन यू विल डू बाय योर ओन, ठीक है। कोई भी लेंथ जो नहीं गिवन है उसे छोड़ दीजिए, जो जो लेंथ गिवन है उसे आप ज्वाइन कीजिए, ओके। सपोज इफ यू विल टेक OD एज अ बेस लाइन, अगर आप OD को बेस लाइन ले लो तो ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा, पहले ये देखो, OD ऐसे होगा स्टूडेंट, L आएगा ऊपर एंड G आएगा नीचे, दैट्स इट। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन O से L, L से D या फिर G L की दिस वो डायगोनल है तो G L इज डायगोनल, इसका लेंथ ऑब्वियसली गिवन होगा, ये टू डायगोनल, वन डायगोनल इज दिस तो दूसरा डायगोनल ऐसे होगा, वेरी सिंपल। सो क्वेश्चन को ट्रिक करके उसे समझ के करोगे, इट बिकम वेरी इजी। I hope this question you will do by your own. So this question is homework for you. You will practice it by your own. और practice से ही ये question will understand you in a better way. Okay, student. Now moving further, our third question. The last part of this exercise 4.2. Okay. Now what you have, student? Third part, quadrilateral given है आपको rhombus. Name is given to you. That quadrilateral is rhombus. BEND. And condition is given to you. ठीक है, हमेशा अपनी नोटबुक में भी ऑलवेज राइट क्वेश्चन फर्स्ट एंड कंडीशन, देन स्टार्ट द क्वेश्चन, ओके। सो rhombus, we make rhombus, name is BEND, so BEND, rhombus made, right? BN, this is BN, one diagonal कितना है 5.6 सेंटीमीटर। DE is this another diagonal that is 6.5 centimeter. Now student, no length is given to you. अगर एक भी length given होती तो we can find out all the length, है ना, but not a single length is being given to you. अब क्या करेंगे? Understand, listen carefully. क्या करेंगे? जो उसकी conditions है वही तो use करेंगे student. We can't do anything from our side. Rhombus का property all length are equal, है ना, अगर एक लेंथ होती then we can use this property. Second property, one property is one also this all that जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब आपको पता है 90 डिग्री पे, और बाइसेक्टर मतलब इक्वल है, अगर ये लेंथ इक्वल है तो ये भी लेंथ इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं स्टूडेंट। सो सिंपली सबसे पहले बेस ले लेते हैं DE। सो टेक अ बेस DE, अंडरस्टैंड इट केयरफुली स्टूडेंट, क्या यूज किया है, DE बेस दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। अब लेंथ नहीं गिवन है तो D से E का हम कंपास खोल सकते हैं, E से ये डायगोनल है बट लेंथ नहीं गिवन है, D से N ऊपर DN नहीं, कुछ नहीं गिवन है, बट हमें ये पता है कि जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, डू यू नो, इन क्लास 6 वी हैव डन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक ही होता है कि ओपन एन आर्क, अपने अकॉर्डिंग ओपन करो, जितनी भी लाइन है उसका मोर देन हाफ वैसे ओपन करते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, मोर देन हाफ, जैसे इस पे रखो एक नीडल एंड देन मोर देन हाफ, सपोज हियर इट इज, ठीक है, लाइक इन सच मैनर, सी विद कंपास मोर देन हाफ, तो एक आर्क हम ऊपर लगाते हैं और सेम एक आर्क हम नीचे लगाते हैं, वहीं पे पॉइंट रख के एक ऊपर और एक नीचे, है ना, एंड नाउ और E पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सिंपली स्टूडेंट। So this is perpendicular bisector. This is perpendicular bisector. ये क्या हो गया N और ये क्या हो गया B, पर इसे हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, why? Because ये अभी हमने perpendicular bisector बनाया है, इसकी प्रॉपर लेंथ क्या है we don't know, प्रॉपर लेंथ क्या है 5.6 है, ठीक है, तो इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओनली, बट हमें पता है कि ये N ये B, और आपको सी स्टूडेंट NB की लेंथ कितनी है 5.6, NB ये फुल लेंथ 5.6 है, ये जहां पे कट रहा है सपोज O पॉइंट है, सी हियर सपोज इट इज O, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल ON विल इक्वल टू OB, है ना, सो हाफ कितना होगा 5.6 अपॉन 2, so 2 1s are 2, 2 2s are 4,
and then 5 2 8 are 16. कितना हुआ स्टूडेंट 2.8. इट मीन्स ON is 2.8 and OB is 2.8. सिंपल. जो आपका ये पॉइंट O बना है यहाँ से आप अब ओपन करोगे आर्क 2.8 इस पे बनाओगे और सेम लेंथ क्योंकि दोनों की सेम है, ऊपर नीचे लेंथ सेम है, बाइसेक्ट है दोनों डायगोनल. ओके सो अब ये आपके पास पॉइंट भी मिल गया और ये आपके पास पॉइंट मिल गया N और ये है B. So from here you can join this, you can join this and you can join this. क्योंकि ये लेंथ से इक्वल है तो ये भी सारी लेंथ इक्वल होंगी. That's it. You got student? Little bit complicated. Complicated क्या है? कुछ नहीं student, क्योंकि हमें डायगोनल्स गिवन थे ये NB डायगोनल गिवन है हमें. तो डायगोनल क्या है? परपेंडिकुलर ना. बाइसेक्टर तो हमने एक पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस पे ये लेंथ हमने मेजर की 5.6. पूरी टोटल कितनी है 5.6. हाफ इज 2.8 2.8. Got student? So this is all about your third part. And student, they are very simple. These questions are very simple, but you need to be focused only कि क्या condition given है, क्या condition given है, on the basis जो given है वही हमने draw करना है. That's it. And I hope that you understood. Do more and more practice of these questions. Okay, so this is all about for today's class till 4.2. In next class we will be completing our this chapter. Okay, so till then, thank you so much student. Bye bye, take care and do practice of these questions. Okay, thank you so much.